تجوید کے قواعد سمجھ کر قرآن پڑھنے کا سلسلہ چل رہا ہے اور چھٹا پارہ میں آج کا سبق ہے یہاں سے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ورفعنا، را کو یہاں پر پور پڑھنا ہے، نا میں الف مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور جن حروف پر زبر زیر پیش ہے اسے جلد پڑھنا ہے۔ فوقہم، یہاں پر واو لین ہے، واو لین کو بھی نرم آواز کے ساتھ جلد پڑھنا ہے۔ فوقہم، قاف کو پور پڑھنا ہے حروف مستعلیہ میں سے، اور سب میں زبر زیر پیش ہے تو اس کو جلدی پڑھنا ہے۔ طور، یہاں پر تو کو پور پڑھنا ہے، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور تا مشدد حرف ہے۔ مشدد والا حرف پیچھے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، تو متحرک حرف پیچھے میم ہے، میم سے مل کر پڑھا جائے گا۔ اور تو میں واو مدہ ہے تو اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے، را کو پور پڑھیں گے۔ بمیثا، میم میں یا مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ سا میں الف مدہ ہے، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ قہم، قاف کو پور پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور ہم کے میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے بھی جلد پڑھنا ہے۔ وقلنا، قاف کو پور پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، نا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ لہو مد، یہاں پر سب کو جلدی پڑھنا ہے۔ یہاں پر دال میں قلقلہ ہوگا اور دال ساکن حرف ہے، تو یہ اپنے پیچھے والے متحرک حرف میم سے مل کر پڑھا جائے گا۔ خلو، خا کو پور پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں پر دیکھیے الباب میں لام ساکن ہے، ساکن والا حرف بھی پیچھے متحرک حرف، لام پہ لام متحرک ہے تو لام سے مل کر پڑھا جائے گا۔ یہ واو اور یہ دونوں الف کو نہیں پڑھیں گے۔ باب میں، با میں یہاں پر الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ سجدوں، دو میں ادغام ناقص ہو رہا، غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ وقلنا، قاف کو پور پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، نا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ لہم کے میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا۔ لا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ تعدو، دو میں واو مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ فی السبتی، یہاں پر سین مشدد حرف ہے تو مشدد حرف پیچھے والے متحرک حرف فا سے مل کر پڑھا جائے گا، اور یا کو نہیں پڑھیں گے، یا میں کوئی حرکت نہیں۔ سبتی، با میں قلقلہ ہوگا۔ وَأَخَذْنَا، خا کو پور پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، نا میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ منہ کے نون میں اظہار حقیقی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ ہم، یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ میم میں یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ سا میں بھی الف مدہ ہے، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ قن، قن میں قاف کو پور پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور تنوین میں اظہار حقیقی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ غلیظہ، غین کو پور پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، لی میں یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ غا کو پور پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں پر ایک زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے وقف کی صورت میں، تو اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ فَبِمَا، دیکھیں ماں میں الف مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ نَقْضِهِمْ، قاف کو پور پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور قاف میں قلقلہ بھی ہوگا۔ ضاد کو بھی پور پڑھیں گے، ضاد بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور ہم، یہاں پر میم ساکن کے بعد میم ہے تو ادغام شفوی ہوگا، غنہ کے ساتھ میں پڑھیں گے اسے۔ میم ادغام، میم یا مدہ ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ سا میں الف مدہ ہے، اسے بھی ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ قہم، قاف کو پور پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور ہم کے میم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ وَكُفْرِهِمْ، را کو یہاں پر باریک پڑھیں گے، اور میم ساکن کے بعد یہاں پر با ہے تو اخفاء شفوی ہوگا، اسے غنہ اور اخفاء کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ آ اور یا دونوں میں کھڑا زبر ہے، دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور اللہ کو یہاں پر باریک پڑھیں گے، کھڑا زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ وَقَتْلِهِمْ، قاف کو پور پڑھیں گے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہاں پر ال میں لام ساکن ہے تو یہ پیچھے والے متحرک حرف میم سے مل کر پڑھا جائے گا۔ اور انبیاء، یہاں پر نون ساکن کے بعد با ہے تو نون کو میم سے ملا کر غنہ اور اخفاء کے ساتھ میں پڑھیں گے، اسے اقلاب کہتے ہیں۔ بیا میں جو مد ہے مد متصل ہے، اسے 3-4 الف کے برابر کھینچتے ہیں۔ بغیر، غین کو پور پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یالین ہے، اسے جلد پڑھنا ہے۔ ری میں را کو باریک پڑھنا ہے، اور حقن، قاف کو بھی پور پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور کیوں میں ادغام ناقص ہو رہا تو غنہ کے ساتھ میں اسے پڑھیں گے۔
वक़ौलिहिम क़ाफ को ऊपर पढ़ेंगे, हुरूफ मुस्तालिया में से है, वाउलीन है, इसे जल्द पढ़ना है। हिम के मीम में ज़ार शफ़ा भी हो रहा है, इसे जल्द पढ़ना है। कुलूबुना क़ाफ को ऊपर पढ़ेंगे, हुरूफ मुस्तालिया में से है। लू में वाव मद्दा है, इसे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। बुना ना में अलिफ मद्दा है, इसे भी एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। गुल्फ गैन को भी पुर पढ़ेंगे और यहाँ पर वक्फ करेंगे तो फ़ा का जो दो पेश की तनवीन है वो सुकून से बदल जाएगा, तो गुल्फ इस तरह से हो जाएगा। तो इसको इस तरह से पढ़ना है। फ़बिमा नक़ज़िहिम मीसाक़हुम व कुफ़्रिहिम बिआयातिल्लाहि व क़त्लिहिमुल अंबिया बिग़ैरि हक़्क़िन व क़ौलिहिम क़ुलूबुना गुल्फ़। आगे बल तबा अल्लाह, तो में तो को पुर पढ़ना है, उर्फ मुस्तालिया में से, और अल्लाह को भी पुर पढ़ना है। खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। अलैहिम में यालीन है, इसे भी जल्द पढ़ना है। हा में अलिफ मद्दा है, इसे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। बिकुफ्रिहिम रॉ को बारीक पढ़ेंगे। हिम के मीम में ज़ार शफ़ा भी हो रहा है, इसे जल्द पढ़ना। फला में अलिफ मद्दा है, इसे भी एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। युमिनून यहाँ पर हमज़ा साकिना है वाव की शक्ल में, तो इसे झटका लगेगा। नू में वाव मद्दा है, इसे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। इल्ला में अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। कलीला क़ाफ को पुर पढ़ेंगे। ली में या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे और यहाँ पर वक्फ करेंगे तो एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ेंगे, जैसे बल तबअल्लाहु अलैहा बिकुफ्रिहिम फला युमिनून इल्ला क़लीला। व बिकुफ्रिहिम यहाँ पर वाव मुशद्दद है, तो ये वस्ल की सूरत में तशदीद पढ़ी जाएगी, और अगर यहाँ पर वक्फ कर लेंगे तो फिर तशदीद को नहीं पढ़ना है। वह भी कुफ्रिहिम रॉ को यहाँ पर बारीक पढ़ेंगे। हिम के मीम में ज़ार शफ़ा भी हो रहा है, इसे जल्द पढ़ना है। वक़ौलिहिम क़ाफ को पुर पढ़ेंगे। वाव लीन है, इसे जल्द पढ़ना है। हिम के मीम में ज़ार शफ़ा भी हो रहा है, इसे जल्द पढ़ना। अला ला में खड़ा ज़बर है, इसे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। मरियम रॉ को पुर पढ़ेंगे। बुहतानन ता में अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। नन की तनवीन में इजहार हो रहा है, इसे जल्द पढ़ना है। अज़ीमा ज़ा को पुर पढ़ेंगे। हुरूफ मुस्तालिया में से या मद्दा है, इसे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। यहाँ पर वक्फ करेंगे तो एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ेंगे, जैसे व बिकुफ्रिहिम व क़ौलिहिम अला मरियम बुहतानन अज़ीमा। वक़ौलिहिम यहाँ पर भी तशदीद को वस्ल की सूरत में पढ़ना है, फ़स्ल की सूरत में नहीं पढ़ेंगे तशदीद को। वक़ौलिहिम क़ाफ को पुर पढ़ना है। वाउलीन है, इसे जल्द पढ़ना है। लिहिम के मीम में ज़ार शफ़ा भी हो रहा है, इसे जल्द पढ़ना है। इन्ना नून मुशद्दद गुन्ना होगा और अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। क़तलना क़ाफ को पुर पढ़ेंगे। हुरूफ मुस्तालिया में से है। नल यहाँ पर देखिए लाम साकिन है, तो साकिन हर्फ पीछे वाले मुतहर्रिक हर्फ नून से मिलकर पढ़ा जाएगा, और ये अलिफ मद्दा जो है ये अलिफ मद्दा नहीं पढ़ा जाएगा, और ये अलिफ को भी नहीं पढ़ेंगे। मसीह सी में या मद्दा है, इसे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। ई में या मद्दा है, यहाँ पर भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। और यहाँ पर बा साकिन है, तो साकिन वाला हर्फ मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर पढ़ा जाता है, तो सीन मुतहर्रिक है तो सीन मिलकर पढ़ा जाएगा, और बा में कलकला होगा। मरियम रॉ को पुर पढ़ेंगे, और रसू में रॉ को भी पुर पढ़ेंगे। सू में वाव मद्दा है, इसे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। लल्लाह यहाँ पर अल्लाह को पुर पढ़ेंगे, और खड़ा ज़बर है जो अलिफ मद्दा की तरह होता है, और यहाँ पर वक्फ करेंगे तो ये हा का ज़ेर सुकून से बदल जाएगा, तो फिर यहाँ पर मद्द आरिज़ वक्फ़ी होगा। मद्द आरिज़ वक्फ़ी, इसमें तूल तवस्सुत कसर तीनों जायज़ होता है। तूल उला होता है, फिर तवस्सुत, फिर कसर का मर्तबा होता है, तो उसको इस तरीके से पढ़ेंगे। वक़ौलिहिम इन्ना क़तलनल मसीहा ईसा इब्न मरियम रसूलल्लाह। देखिए वमा में अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। क़तलू में क़ाफ को पुर पढ़ेंगे। हुरूफ मुस्तालिया में से लू में वाव मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। वमा में अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। सलबू सौद को पुर पढ़ेंगे। हुरूफ मुस्तालिया में से बू में वाव मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। वला में लाम में खड़ा ज़बर है, तो ये इसको भी एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। वलाकिन नून में इख्फा हो रहा, नून की आवाज़ को नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। शुब्बिहा लहुम, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से वमा क़तलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिहा लहुम। व इन्ना नून मुशद्दद गुन्ना के साथ में पढ़ेंगे। दाल को बारीक पढ़ेंगे। या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। खौ को पुर पढ़ेंगे। हुरूफ मुस्तालिया में से, और ये साकिन हर्फ है तो पीछे वाले नून मुतहर्रिक हर्फ इससे मिलकर पढ़ा जाएगा। फू में वाव मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। फ़ी में या मद्दा है, इससे भी एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। लफ़ी में भी या मद्दा है, इससे भी एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। शक किम, किम यहाँ पर इदगाम नाक़िस हो रहा है,
गुन्ना के साथ में पढ़ेंगे। नून में यहाँ पर नून में इजहार हो रहा है, इजहार हकीकी, तो इसे जल्द पढ़ना है। जैसे वइन्नल्लज़ीना इख्तलफ़ू फ़ीहि लफ़ी शक्किम मिन। मा लहुम, मा में अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। लहुम मीम साकिन के बाद बा है तो इख्फा शफवी होगा, गुन्ना इख्फा के साथ में पढ़ेंगे। हा में खड़ा ज़ेर है जो या मद्दा की तरह होता है तो इसे एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। मिन के नून में इज़हार हकीकी हो रहा है, इसे जल्द पढ़ना है। इल्मिन, मिन में भी इज़हार हकीकी हो रहा है, इसे जल्द पढ़ना है। इल्ला, इल्लत ता से मिलेगा। बा में अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। अज़, ज़ यहाँ पर ज़ को पुर पढ़ना हुरूफ मुस्तारिया में से है, और ज़ मुशद्दद हर्फ है तो पीछे वाले मुतहर्रिक हर्फ आइन से मिलकर पढ़ा जाएगा। यहाँ पर नून मुशद्दद है तो यहाँ पर गुन्ना करेंगे। वक्फ की सूरत में भी इसे गुन्ना के साथ में पढ़ना है। वक्फ करेंगे तब भी गुन्ना करेंगे। देखिए, मा लहुम बिही मिन इल्मिन इल्ला इत्तिबाअज़्ज़न्न। वमा, माँ में अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। क़तलू, क़ाफ को पुर पढ़ेंगे। लू में वाव मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। यकीना, क़ाफ को पुर पढ़ेंगे, हुरूफ मुस्तारिया में से है। या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे और यहाँ पर वक्फ करेंगे तो एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ेंगे। जैसे वमा क़तलूहु यक़ीना। आगे बल, देखिए यहाँ पर जो मीम है, ये मीम ये इक़लाब हो रहा है। इक़लाब ये उस वक्त होगा जब यहाँ पर वस्ल के साथ में पढ़ेंगे, तब मीम को पढ़ेंगे, तब यहाँ पर इक़लाब होगा। अगर फसल करेंगे तो फिर इक़लाब नहीं होगा। जब इक़लाब नहीं होगा तो ये मीम को फिर नहीं पढ़ना है, ठीक है। बर रफ़अहुल्लाह, यहाँ पर देखिए लाम जो है रा के साथ मुदगम हो जा रहा है, तो लाम नहीं पढ़ा जा रहा, रा को पुर पढ़ना है। और अल्लाह को पुर पढ़ेंगे, खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। इलई, यहाँ पर देखिए या लीन है, और या लीन है, उसके बाद यहाँ पर हा का ज़ेर सुकून से बदल जाएगा वक्फ की सूरत में, तो फिर यहाँ पर मद्दे लीन आरिज़ होगा। मद्दे लीन आरिज़, इसमें तूल तवस्सुत कसर तीनों जायज़ होता है, लेकिन कसर ऊला होता है, यानी एक अलिफ के बराबर खींचना बेहतर होता है, तो उसको इस तरीके से पढ़ेंगे। बर रफ़अहुल्लाहु इलैहि। वकाना, का पे अलिफ मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। अल्लाह को पुर पढ़ेंगे, खड़ा ज़बर है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। अज़ीज़ा, जी यहाँ पर या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। ज़न, तनवीन में इज़हार हो रहा है, इसे जल्द पढ़ना है। हकीमा, यहाँ पर या मद्दा है, एक अलिफ के बराबर खींचेंगे और यहाँ पर वक्फ करेंगे तो एक ज़बर के साथ अलिफ पढ़ेंगे। जैसे वकाना अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा।